Hello students, today we are here again to understand in detail our subject Organization of Commerce and Management, Maharashtra State Board. Today we are going to learn in detail our first chapter, that is Introduction to Commerce and Business. बिजनेस के फीचर्स में वी हैव लर्न इकोनॉमिक एक्टिविटी. Business should have two parties, that is buyer and seller. Main motive, main aim of business is to earn profit. Main activity conducted by business is production of goods and services. Not only production but exchange of goods and services to ultimate consumers. Then dealing in goods and services, mainly two types of goods businessman produces, that is consumer goods which is consumed by ultimate consumer, and capital goods which is used for the further production purpose. Continuity, whatever activity conducted by businessman, he has to continue its lifelong. Then uncertain returns, whatever reward, whatever profit he is going to earn, that is not fixed, it is changes according to the situation. Then element of risk, the businessman, he has to suffer many time losses because risk is involved in business. The consumer taste likeness will change, so the profit will also change. Consumer satisfaction, the main aim of all the economic activity is to satisfy consumer. It is the prime duty of the economic activity. Now, we are going to see the second category of economic activity, that is profession. So, profession, here you can see doctor is there. You can see doctor, lawyer and CA. So, these are called as the professionals. Now, they require special educational knowledge and special skill, and they are doing this for earning money. तो हमने कॉमर्स लिया है तो हम कॉमर्स लेकर आइदर वी कैन बिकम CA, CS है, ICWA कर सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं. तो ये प्रोफेशनल्स हो गए. तो इनको जो इनकम मिलेगी, दे आर गोइंग टू गेट देयर इनकम इन टर्म्स ऑफ फीस. आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर फीस चार्ज करेगा. लॉयर के पास जाते हैं केस के लिए तो लॉयर भी फीस चार्ज करता है. CA के पास जाएंगे, CA विल ऑल्सो चार्ज फीस. तो प्रोफेशनल्स जो है वो फीस के टर्म्स में अपना मनी अर्न करते हैं फॉर रनिंग देयर लाइवलीहुड. Then we will see the features of profession. So very first feature of profession is aim. Every profession, whatever profession is practiced, it is only for earning money. हम पैसा earn करने के लिए ही profession लेते हैं. तो क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इसका एम ही मनी अर्न करना है. लेकिन मनी अर्न करने के साथ में वी हैव मनी अर्न करने के साथ में वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ आवर क्लाइंट. तो जो लॉयर है, डॉक्टर है, CA है, आर्किटेक्ट है, उनके पास हम कब जाते हैं? जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है. व्हेन वी हैव एनी कंप्लेंट्स, एट दैट टाइम वी गो एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम with these professionals. Then after second is qualification. तो every professionals is required qualification. तो उसको required जो भी qualification है उसको acquire करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है and उसका एक सेट ऑफ बॉडी नॉलेज होता है. जैसे आपको CA बनना है तो आपको CA के जितने भी 3.5 years है उसमें सारे आपको एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, उसका पोर्शन आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन बिकम CA. अगर आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपने अगर कॉमर्स लिया है तो यू कैन नॉट बिकम इंजीनियर. ठीक है, आपने कॉमर्स लिया है तो यू कैन नॉट बिकम डॉक्टर. तो अगर डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS की स्टडी करनी पड़ेगी.
आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी पड़ेगी. सो दिस वे सेट ऑफ एक बॉडी नॉलेज होता है जहाँ पर आपको फॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है सिस्टमेटिक वे से, दैट यू हैव टू कवर, that you have to acquire, then only you can become the professional. Then third one is financial returns. So professionals are going to get fees अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी कि सीए है, डॉक्टर है, उसने अपना ही क्लिनिक खोल दिया, सीए ने अपना ऑफिस खोल दिया, आर्किटेक्ट ने अपना ऑफिस खोल दिया, तो वो फीस लेगा. लेकिन अगर वो कहीं और जगह पर एम्प्लॉय के तौर पे, वर्कर के तौर पे जॉब कर रहा है, जैसे सीए कोई कंपनी में काम करता है, या डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर वर्क कर रहा है, कोई आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो ही इज़ गोइंग टू गेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी. उसको फिक्स्ड सैलरी मिलेगी एवरी मंथ. जो बेनिफिट मिलते होंगे वो सारे बेनिफिट उसको अपनी जॉब कंडीशन के साथ में मिलेंगे. देन कैपिटल, अगर इंडिपेंडेंटली वो काम कर रहा है, खुद की प्रैक्टिस कर रहा है प्रोफेशनल, तो ही रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल. जैसे सीए है, अगर सीए है, आर्किटेक्ट है, इंजीनियर है, वो खुद की अपनी ऑफिस खोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको ऑफिस के लिए जगह देखनी पड़ेगी. फॉर दैट दे हैव टू पे रेंट, या खुद की ले रहे हैं तो उसका पैसा देना पड़ेगा. देन उसको फर्निशिंग करना पड़ेगा, फर्नीचर लेना पड़ेगा. देन दे हैव टू बाय द कंप्यूटर्स है एट्सेट्रा, उनको परचेस करना पड़ेगा. तो इसके लिए दे हैव टू इन्वेस्ट मनी. तो खुद की ऑफिस खोलते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी दे हैव टू इन्वेस्ट, कैपिटल ज़्यादा लगेगी. लेकिन अगर वो कहीं और काम कर रहे हैं सो दे डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मनी, क्योंकि जहाँ ऑफिस में वो काम करते हैं तो उस ऑफिस में एवरीथिंग विल बी प्रोवाइड. उनको चेयर मिलेगा, उनको अपनी कैबिन मिलेगी, टेबल मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप. तो यहाँ पर जो भी एक स्पेसिफिक काउंसिल होगी, उस काउंसिल का मेंबरशिप उसको लेना पड़ेगा. जैसे कि अगर लॉयर्स हैं तो लॉयर के लिए इंडिया में बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स है, उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा. चार्टर्ड अकाउंटेंट को ICAI काउंसिल का मेंबरशिप लेना पड़ेगा. अगर डॉक्टर्स है तो IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स है, उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा. ये जो काउंसिल्स होती है दे प्रोवाइड द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि आपको किस तरह से काम करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको ये काउंसिल देती है. एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू वर्क. सो एवरी प्रोफेशनल्स जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं दे हैव टू एक्वायर मेंबरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव काउंसिल. देन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, तो आपका जो प्रोफेशन है दैट यू कैन नॉट ट्रांसफ़र टू एनी अदर पर्सन, उसकी इच्छा हो तो भी और ना हो तो भी. जैसे अगर आपकी किराने की दुकान होगी तो आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपने छोटे भाई बहन को किराने की दुकान में माल बेचने के लिए बिठा सकते हैं. लेकिन आपकी सीए की ऑफिस है, डॉक्टर का क्लिनिक है, लॉयर का ऑफिस है, तो वहाँ पर आप अपने छोटे भाई बहन को जो पढ़े लिखे नहीं हैं या दूसरी स्ट्रीम से पढ़े लिखे हैं, तो उसको आप अपनी जगह पर बिठाकर थोड़े दिन छुट्टी नहीं ले सकते हैं. उसने अगर सेम कोर्स अगर लिया हुआ है देन ओनली यू कैन transfer it, otherwise you cannot transfer your profession to anybody else in your family or to your relatives or to your friends. तो यहाँ पर अगर उसने BE की है, आपने BCom किया है, तो दोनों ने बैचलर किया है तो चलो बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है. उसने भी BE की होगी, वो कंप्यूटर इंजीनियर होना चाहिए, आप भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, तो ही आप उसको अपना जो है अपने ऑफिस में साथ में रख सकते हो. अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रांसफ़र योर वर्क टू एनीबडी एल्स because it requires special skill and knowledge. Then nature of work, the professionals का जो वर्क होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ होता है, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशंस और सिस्टमेटिक ट्रेनिंग वो लेते हैं. दैट इज़ वाई
द नेचर ऑफ वर्क इज़ दैट एक्सपर्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। यानी आपको अगर कोई केस फाइल करना है या कोई केस लड़ना है तो आप लॉयर के पास जाएंगे। आपको अगर कोई डिसीज़ हो गया, अगर आपको कोई हड्डियों के रिलेटेड कोई डिसीज़ हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे। आपको अगर कान या नाक में कोई प्रॉब्लम है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो एक्सपर्ट सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड करते हैं, फॉर दैट दे चार्ज द फीस। सो इन शॉर्ट वी हैव लर्न अबाउट द प्रोफेशन. Profession is one of the economic activity. Their main aim is to earn money by way of charging fees. Their qualification is to acquire systematic qualification, systematic training they acquire. They get financial returns in terms of fees if they are self-employed, and if they are working under somebody, then they are going to earn salary. Then if they are practicing independently, then they require huge amount of capital. Otherwise, if they are working somewhere else, they doesn't require any capital. Then registration and membership is compulsory from the council. जो कंसर्न काउंसिल है वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप करवाना पड़ेगा. Their profession is not transferable to anybody else, and their nature of work is to provide expert services. Now we are going to see the third category of economic activity, that is regarding employment. Now employment means people work for other. आप किसी के लिए काम करते हो, किसी के अंडर में काम करते हो, उसको एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है. Employer is the person who offers the work. जो काम देता है उसको employer बोलेंगे. And employee is the person who accept the work. जो काम accept करता है उसको हम employee बोलेंगे. The remuneration terms and conditions should be agreed by both of them. तो जब भी आप employment के लिए जाते हैं तो here you have to एक्सेप्ट दी टर्म्स एंड कंडीशंस. जो एम्प्लॉयर आपको बताता है आप एम्प्लॉयर को बताओगे. तो योर बॉस एंड यू हैव टू एग्रीड विद द कंडीशंस. देन वी विल सी द फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इसका मेन एम होगा टू अर्न मनी अर्न करने का मेन एम है. देन क्वालिफिकेशन. एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन एज सच नहीं है. यहाँ पर अगर स्किल्ड जॉब आप कर रहे हो तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगी. अनस्किल्ड वर्क कर रहे हो तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. जैसे अगर आपको ड्राइवर का जॉब करना है तो ड्राइविंग आना चाहिए, तो ये हो गया स्किल्ड जॉब. आपको अकाउंटेंट का वर्क करना है तो यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी. आपको कॉमर्स में एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए. आपका अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए. अनस्किल्ड वर्क क्या होता है, यानी कि गुड्स को लोड अनलोड करना, यानी कि टेम्पो में से गुड्स को माल को उठाना, माल को चढ़ाना. इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है. यू शुड हैव द फिज़िकल स्टेमिना कि आप माल टेम्पो में चढ़ा सको और उससे उतार सको. तो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जॉब उसके हिसाब से आपको अपना काम करना पड़ेगा. देन फाइनेंशियल रिटर्न्स. तो जो भी वर्कर के तौर पर काम करते हैं तो उनको वेजेस दिया जाता है, डेली मजदूरी. ठीक है. एम्प्लॉय को अपना काम करने के बाद में दे आर गोइंग टू गेट वेजेस. जैसे हम दिवाली में अपना घर साफ करने के लिए अगर कोई मेड सर्वेंट रखते हैं तो उसको डेली के हिसाब से हम 100 रुपीज़, 150, 200 रुपीज़ अकॉर्डिंगली वी पे देम. उसको वेजेस बोलते हैं. एंड सैलरी इज़ पेड मंथली. तो सैलरी जो है वो मंथली पे की जाती है. उसके साथ में आपको बोनस मिलता है. आपको जो है कैंटीन में फूड प्रोवाइड किया जाता है सब्सिडाइज्ड रेट पे. तो
दिस इज द फाइनेंशियल रिटर्न्स, बिकॉज ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरी प्रोवाइड की जाती है. कैपिटल, यहाँ पर कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज whatever work you are doing there in your office, you are going to get everything from your employer. आपका बॉस आपको सब प्रोवाइड करेगा. आप जो ऑफिस में काम करते हो आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, फाइल मिलेगा, पेन, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट देयर. अगर आप कोई फैक्ट्री में काम करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट मशीनरी, ऑयल, आपको सब कुछ मिलेगा जहाँ पर आप अपना वर्क कर सको. तो देर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, यहाँ पर आपको कोई भी काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन या मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है. अगेन नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है. एम्प्लॉयमेंट आप प्रोफेशन की तरह किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं. आज अगर मुझे छुट्टी लेनी है तो मेरे बदले में मेरी भाई या बहन या मेरे कोई रिलेटिव फ्रेंड को मेरे बदले कॉलेज नहीं भेज सकती हूँ कि मेरे बदले आज आप पढ़ा लो. आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज़ नॉट नॉन ट्रांसफरेबल. क्योंकि मेरा जो एग्रीमेंट हुआ है मेरे बॉस का और मेरा, हमारा आपस में एग्रीमेंट हुआ है कि आई एम गोइंग टू सर्व एज अ टीचर लेक्चरर इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज. तो मैं मेरे बदले किसी और को काम करने के लिए नहीं भेज सकती. दैन नेचर ऑफ वर्क, एवरी एम्प्लॉय दे आर सपोज टू कंप्लीट द वर्क विच इज़ गिवन टू देम. उनको जो काम दिया है वो काम उनको करना है. तो यही उनका नेचर ऑफ वर्क होता है. तो जैसे जो जॉब आपने लिया है उस जॉब के हिसाब से आपको काम करना है. जैसे आई एम दी लेक्चरर ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो मुझे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ाने हैं और मुझे मेरा सिलेबस कंप्लीट करना है. आई हैव टू सेटिस्फाई माई स्टूडेंट्स. तो अगर हमारे ऑफिस के क्लर्क हैं, उनका अपॉइंटमेंट ऐसे क्लर्क हुआ है तो उनको क्लैरिकल वर्क करना है. ठीक है, तो जिसकी अपॉइंटमेंट जिस काम के लिए हुई है उस काम का उसे कंप्लीट करना है. तो इन शॉर्ट टुडे वी हैव लर्न द एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स. दैट इज़ द एम ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ टू अर्न मनी. देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्ड जॉब होगा तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है. स्किल्ड जॉब नहीं है तो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी क्वालिफिकेशन. फाइनेंशियल रिटर्न्स, दे आर गोइंग टू गेट वेजेस और सैलरी and bonus and other benefits. Capital, there is no need of any capital. There is no need of any registration and membership. Then their job is not transferable to anybody else. Then their nature of work depends on work given to them. Today we have covered the points like human activities, that is two type of activity, economic and non-economic. Then under economic activity, business, profession and employment, we have learned their meaning, features of each and every thing. I hope that you have enjoyed this session and you have understood the points which is covered today. Thank you very much for being with me. We will meet again in next session. Till then, bye bye.